Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and enjoying your online lectures. Our first chapter for C3 English is Journeys, unit number 9. First of all, I am going to talk about the time machine about which this lesson is written. The Time Machine is a novel which was written by H.G. Wells in 1895. As you can see here in the first two lines, that the writer describes a story of an inventor who travels to other civilizations in his time machine. So here a time machine is a device which is used by the inventor to move on or to move forward in future time. This time may consist of some weeks, months, years. So you can say that time machine is a device that is used here. According to Well, when this novel was written, there was very problematic situation in the society. At that time, social issues were there. Social issue of class conflict was there. There was an elite class, capitalists, the masters, the owners of the industries. On the other side, there is the working class, the laborers, the lower class, and these are exploited by the rich class. The rich class exploited them for their benefits. They didn't have any concern regarding the lower class, about their rights, about their needs, basic needs. They were concerned only about their own benefits, how to raise their profits in industry by using the workers or laborers. So we can see that in this novel, as there is only a part, or you can say that the final part of the novel, the time machine, that is given here in your book. The complete novel is not given. So according to the writer, it is not possible to move on, to move to some other time, to move in future time by ignoring your social issues that are in your present life. It is not possible that you can find those problems solved in your future simply by ignoring them. You can get rid of those problems only when you will deal them properly.
आप ऐसा नहीं है कि किसी भी एक डिवाइस को यूज़ किया उसमें बैठे और आप जो हैं वो प्रेजेंट आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आपको सोशल इश्यूज़ हैं, आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं, तो आप उनको इग्नोर करके तो आप जो है वो किसी डिवाइस में बैठें और आप फ्यूचर में मूव कर जाएं, आप उस टाइम को जो है वो आगे फर्दर मूव कर दें, कुछ वीक्स कर दें, मंथ्स कर दें या ईयर्स तक कर दें, और आप ये कहें कि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम्स जो है ना वो खुद ब खुद ही सॉल्व हो चुकी हों। दैट्स नॉट पॉसिबल। लिहाजा आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रॉपरली उनको हैंडल करना पड़ेगा। उनको इग्नोर करके उनसे आपकी जान नहीं छूटेगी। आप उनको प्रॉपरली हैंडल करें, उनका प्रॉपर सोल्यूशन तलाश करें, देन यू विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ दोज इश्यूज़। अब हमारे पास जो उनका सोशल इशू था उस टाइम वो था क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब सेम जो चीज़ है that Wells is saying here, according to him, we can't just rely on the passage of time to make society better and more just. The time traveler goes roughly 8 lakh years into the future, but the gap between the social classes has not been decreased. In fact, it is worse than ever. And the Elois live in constant fear of Morlocks. Here, Elois and Morlocks are the two classes that are represented by the capitalists and the workers. Morlocks are the capitalists, whereas Elois are the workers or the laborers or the lower class of the society. So, in fact, through his novel, he argues that we need to deal with our social problems. We can't just sweep them under the carpet. हम उनको इग्नोर करके ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम इग्नोर करके जो है वो फर्दर फ्यूचर टाइम में मूव कर जाएं और वो खुद ब खुद सॉल्व हो चुकी हों। उनके सोल्यूशन के लिए और उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें उन्हें प्रॉपरली डील करना पड़ेगा। जी बच्चे, अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम्स वैसी की वैसी ही रहेंगी हमारे लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग नाउ। द फॉलोइंग टेक्स्ट comes from the final part of the Time Machine, a work of science fiction written by H.G. Wells in 1895, in which an inventor travels to other civilizations in his time machine. ये जो नीचे हमें टेक्स्ट दी गई है बच्चे, लेसन दिया गया है, ये दी टाइम मशीन नावल के आखिरी हिस्से में से है। अ वर्क ऑफ साइंस फिक्शन, जो कि एक साइंस फिक्शन है या कहानी है, रिटन बाय H.G. वेल्स, जिसको H.G. वेल्स ने 1895 में लिखा। उसमें अब होता क्या है, एन इन्वेंटर ट्रेवल्स टू अदर सिविलाइजेशंस। हेयर इन्वेंटर मीन्स मौजिद, इन्वेंटर मीन्स मौजिद, उसको ईजाद करने वाला। ट्रेवल्स टू अदर सिविलाइजेशंस, सिविलाइजेशंस मीन तहजीबें, दूसरी तहजीबों में जो है वो सफ़र करता है अपनी टाइम मशीन में बैठ के। टाइम मशीन इज़ अ डिवाइस। At the end of his travels, सफ़र के बाद जो है, he is propelled far into the future. propelled होता है धकेल देना दूर, into the future मुस्तकबिल में, where he sees the image of डेसोलेट वर्ल्ड, वीरान दुनिया का जो की तस्वीर वो देखता है। डिस्क्राइब्ड इन दिस टेक्स्ट, जो कि उसने इस वाले लेसन में डिस्क्राइब कर दिया। H.G. वेल्स ऑल्सो रोट अनदर वेरी फेमस साइंस फिक्शन स्टोरीज। उसने और भी बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, जिनमें से द वॉर ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज स्टोरीज। वेल्स वर्क्स ऑफ साइंस फिक्शन आर फेबल्स। फेबल्स मीन्स कहानियाँ हैं, ठीक है।
फिक्शंस होती हैं इमेजिनरी स्टोरीज़, आर फेबल्स कंटेनिंग सीरियस वार्निंग्स, जिनमें बहुत संजीदगी से ख़बरदार किया गया है अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एडवांस्ड साइंस, जो जदीद साइंस है उसके असरात के बारे में, एंड एलियन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेसिस ऑन आर इस्टेब्लिश्ड सोसाइटी। इस्टेब्लिश्ड सोसाइटी मीन्स जो हमारी ये मुनज़्ज़म मुआशरा है, इसके ऊपर क्या असरात पड़ेंगे जदीद साइंस के, और एलियन होती है अननोन, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेसिस जो कि ज़मीन से रिलेटेड नहीं है, उनके क्या असरात होंगे हमारी इस मुनज़्ज़म सोसाइटी पे, ये उसने उनके बारे में ख़बरदार किया है। द पिक्चर ही पेंट्स इन दिस टेक्स्ट इज़ सर्टेनली अ चिलिंग वन। चिलिंग है बच्चे, हौसला पस्त कर देने वाली, डिसअपॉइंटेड, ठीक है, वो पिक्चर है जो वो पेंट करता है यहाँ पे। द फर्स्ट पर्सन नरेटर इन द टेक्स्ट इज़ द इन्वेंटर। अब जो बंदा इसको बयान कर रहा है कहानी को, वो इन्वेंटर है, हु इज़ एड्रेसिंग हिज कोलीग्स। हमें नीचे जो कि नज़र आएगा कि वो मुखातिब है अपने दोस्तों से, ऑन हिज रिटर्न, अपनी वापसी पे। वापसी कहाँ से, ये जो ट्रैवलिंग करके वो वापस आ रहा है। टेलिंग देम ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस ऑन हिज टाइम मशीन, कि उसे कौन से अपने वो तजर्बात जो हैं वो शेयर करेगा उनके साथ हैं, कि वो टाइम मशीन जो है उससे जब वापस आया है तो उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। लेट्स स्टार्ट आवर पैराग्राफ नंबर 1। आई स्टॉप्ड एंड सैट अपॉन द टाइम, सैट अपॉन बैठना, कि आई स्टॉप्ड मैं रुका और बैठा टाइम मशीन पर, लुकिंग अराउंड इर्द गिर्द देखता हुआ। द स्काई वॉज नो लॉन्गर ब्लू, अब यहाँ आसमान जो है वो ब्लू नहीं है, नॉर्मली वो ब्लू होता है। अहेड इट वॉज इंकी डार्क, इंकी डार्क बहुत ही स्याह स्याही है आगे। एंड आउट ऑफ द ब्लैकनेस, स्याह स्याही मीन इट इज़ ऑल डार्कनेस, एंड आउट ऑफ द ब्लैकनेस शोन ब्राइटली एंड स्टेडिली द वाइट स्टार्स। अब उस अंधेरे में से क्या नज़र आ रहा है उसको, चमकते हुए, उससे मुस्तकिल चमकते हुए वाइट स्टार्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या कहता है, ओवरहेड, ओवरहेड, अब उसके सर के ऊपर क्या है, इट वॉज स्टारलेस एंड आ डीप रेड। अब ऊपर क्या नज़र आ रहा है उसको, स्टारलेस नज़र आ रहा है, डीप रेड स्काई नज़र आ रहा है। बिहाइंड इट वॉज ग्लोइंग स्कारलेट, और बिहाइंड इट वॉज ग्लोइंग स्कारलेट, स्कारलेट भी आप रेड कलर को कहेंगे, सुर्ख कलर को। अब पीछे से क्या नज़र आ रहा है, चमकता हुआ सुर्ख रंग। देयर ले द ह्यूज सन रेड एंड मोशनलेस, वहाँ पे बहुत बड़ा सूरज नज़र आ रहा है, रेड, बहुत ज़्यादा चमक रहा है, रेडिश कलर का है, एंड मोशनलेस और साकित। द रॉक्स अबाउट मी, जो अब उसे जो पत्थर या पहाड़ नज़र आ रहे हैं, वर ऑफ ए हार्श रेडिश कलर, वो गर्मी की वजह से बहुत ही ज़्यादा सुर्ख हुए हुए हैं। एंड ऑल द ट्रेस ऑफ लाइफ दैट आई कुड सी एट फर्स्ट was the intensely green vegetation। और अब जो उसको नज़र आ रही है, जो ज़िंदगी के आसार जो पहले वो देखता है, वो क्या है कि उसको सब्ज़ा नज़र आता है, ग्रीन कलर का, सब्ज़ कलर का, इंतहाई सब्ज़ कलर का। दैट कवर्ड एवरी प्रोजेक्टिंग पॉइंट, जिसने हर उभरी हुई जगह को जो है ना, या जो नुमायाँ जगह है उसको कवर किया हुआ है, उसको अपनी लपेट में लिया हुआ है। इट वॉज द सेम रिच ग्रीन दैट वन सीज ऑन प्लांट्स विच ग्रो इन अ परपीचुअल ट्वीलाइट। परपीचुअल होता है हमेशा रहने वाली, ट्वीलाइट का टाइम होता है जब सूरज गुरूब हो रहा हो तो बहुत क्लियर नहीं होता, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होती, हल्की हल्की रोशनी होती है, तो उस टाइम में जो ग्रो कर रहा है वो ये वही ग्रीन कलर है जो आपको प्लांट्स में नज़र आता है। द टाइम मशीन वॉज स्टैंडिंग ऑन अ स्लोपिंग बीच, स्लोपिंग ढलवान होती है, बीच साहले स्लोब सा बना होता है, ढलवान सी बनी होती है, तो साहले समंदर पे जो ढलवान सी बनी उसके ऊपर जाके इसकी जो है वो लैंड करती है टाइम मशीन। द सी स्ट्रेच्ड, अब जो समंदर है सामने वो फैला हुआ है, टू अ शार्प ब्राइट होराइजन अगेंस्ट द पेल स्काई। अब वो दूर से देख रहा है कि उसको नज़र आ रहा है कि दूर तक जो है वो समंदर फैला हुआ है, और ऊपर जो हमारा स्काई है वो बिल्कुल पेल उसका कलर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, देयर वर नो वेव्स, अब यहाँ पे नीचे समंदर में क्या है, कोई लहरें नहीं हैं। फॉर नॉट अ ब्रीद ऑफ विंड वॉज स्टीरिंग, सॉरी ब्रेथ ऑफ विंड वॉज स्टीरिंग। स्टीरिंग का मतलब ये होता है हलचल मचाना, ठीक है, यानी उसमें अब नीचे जो आपको समंदर नज़र आ रहा है उसमें किसी किस्म की कोई जो है ना वो वेव नहीं प्रोड्यूस हो रही, इट मीन्स हवा नहीं है
और वो कोई हलचल आपको महसूस नहीं हो रही। ओनली अ स्लो स्वेल होता है मतलब आहिस्ता से स्वेल करना, मतलब फूलना, ठीक है। विच रोज़ एंड फेल लाइक अ जेंटल ब्रीदिंग, जिस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहे हैं ना, बहुत तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं ना, बहुत ही मतलब ना नॉर्मली, मतलब जेंटली होता है कि बड़े कह लें कि विदाउट शोइंग एनी एक्सट्रीम, आप जेंटली नॉर्मली ब्रीद कर रहे होते हैं, आराम आराम से नॉर्मल वे में आप ना सांस ले रहे हैं। तो उसी तरह से क्या है, आपको जो है ना वो समंदर में आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो पानी चलता हुआ नज़र आएगा, जो कि